Students, in today's lecture, we will start the group number 17. And before that, first of all, we will make a list which are which are given in our board syllabus. So first of all, 7.18.1. Here we will write the cancelled topic, and here we will write the topics which are covered in our syllabus. So 7.18.1, it is cancelled. Then 7.18.2, 3, 4, 5, 6 and 8. These topics are considered in our syllabus, and 7.18.7 is cancelled. Okay. Then theory, chlorine gas is considered, where HCl 7.20, this is 7.19. So 7.18.8 तक था, वो था सिलेबस में, 7 और 1 कैंसल्ड है, और 7.19 is a no syllabus, where 7.20, that is the hydrogen chloride HCl theory, it is cancelled. Then 7.21, oxo acids. 7.22, interhalogen compounds. Is deleted. Okay, so thus this is our syllabus and this is not. Okay, so first of all, today we are taking the 7.19 topic, that is the dichlorine gas. Okay, let's start. So students, now today we are taking the short note chlorine, dichlorine gas. Okay, so this chlorine can be prepared by many ways. First is chlorine name is given based on the Greek word chloros, means greenish yellow gas. Okay, greenish yellow means chloros, and this color has a greenish yellow color, that's why it is known as chlorine gas. First is the preparation. So first preparation is so much easy. It is when MnO2 is reacted with HCl to give MnCl2 and the chlorine gas. At that time water is liberated. Okay, simple reaction, and by this reaction chlorine gas can be prepared. Second one is when NaCl is combined with MnO2 and H2SO4. So at that time 4 NaCl, 1 MnO2 and 4 H2SO4 are reacted to give again MnCl2 and chlorine gas and 4 NaHSO4 with 2H2O. And the third one is, अब चलो इसका यहाँ पे हम नंबर लर्न करेंगे कैसे, 414-1142, 4 NaCl, 1 MnO2, सीक्वेंस भी आपको याद रखनी पड़ेगी, then 4 H2SO4, then MnCl2 and Cl2 1 1 and 4 NaHSO4 and 2H2O. सिमिलरली सेकेंड एक रिएक्शन है, उसमें भी आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, दैट इज 2162285. अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी रिएक्शंस हमने 7 चैप्टर में की, 8th चैप्टर में की, उन सब रिएक्शंस में हमें एक ही फंडामेंटल याद, नंबर्स जो याद रखने हैं, ऐसे दो ही रिएक्शन आए. एक अभी हमने बताया जो 414-1142, और दूसरी ये है कौन सी, 216
2285. Again 216 dash 2285, and the chemical reaction is 2KMnO4 plus 16HCl to give 2KCl, 2MnCl2, 8H2O and 5Cl2. Again the number is 216-2285. हर एक का एक नंबर आपको याद रखना है. 2KMnO4, 16HCl, 2KCl, 2MnCl2, 8H2O and 5Cl2. So this is 216-2285. Again 216-2285. आगे का नंबर क्या था? 414-1142. Again 414-1142. And here 216-2285. So these are the 1, 2 and 3 preparations of chlorine gas in laboratory. And now the manufacturing of the chlorine gas. If we want chlorine gas in large scale, so first process is the Dakens process. This one is Dakens process. And एकदम easy reaction है इसके, देख लो. 4HCl plus O2 in presence of CuCl2 we are getting the chlorine gas and 2H2O. Okay, so this one is our Dakens process. Okay, and this equation is given in group 16, the chemical reactions of oxygen. तो उसमें यही catalyst था, CuCl2. Sometimes you may be asked that in Dakens process which catalyst is used. Answer is CuCl2. And here it is heated at 723 Kelvin, and that is not given in chemical equation, that is given in a statement. Is it? Chalo. Next is the electrolytic process. And I think you know it. If we take the concentrated aqueous solution of NaCl, and this concentrated solution is known as brine. Okay, and when this brine is electrolyzed, इसका जब हम electrolysis करेंगे उसमें एनोड कैथोड डीप करेंगे, and then after electricity is passed, so at that time at anode which reaction takes place? It is Cl minus, 2Cl minus gives Cl2 and 2 electrons. Thus chlorine gas is obtained at anode, and at cathode electrolysis of water is occurred, and we are getting H2 gas plus 2OH minus. Okay, and at cathode hydrogen gas is formed. So this is the preparation of chlorine in large scale. In again आगे हमने दो इक्वेशन पढ़े, ये वाला इक्वेशन लर्न करो, सेकेंड वाला उसका नंबर 414-1142 और दूसरे का नंबर आया 216-2285. नंबर से जब भी रिवाइज करोगे तब वो इजीली आपको याद रह जाएगा. ओके, चलो अब टेक्स्ट बुक में से समझाना है. ओके स्टूडेंट्स, तो टेक्स्ट बुक में से अब देखते हैं. चलो, सो क्लोरीन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय द शील scientist in 1774 by the action of hydrochloric acid and MnO2, ये वाली reaction. Okay, in 1810 Davy established the elementary nature and suggested the name chlorine on account of its color, that is a greenish yellow color. It is known as chloros, so it's a chlorine. Preparation, it can be prepared by the any one ऑफ द फॉलोइंग मेथड. तो ये जो प्रिपरेशन है वो लैब की प्रिपरेशन, उसमें से पहली रिएक्शन तो आ गई. सेकेंड
मैंने अपनी तरह से नंबर याद रखा है 414-11142, ऐसा समझाया था ना मैंने। ओके तो ये वाला 1, फिर उसके ये वाला 1 एंड देन बाकी के दो। दूसरा नंबर 216-2285। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा और लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर इसी नंबर से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लेकिन कंटिन्यूस 1 वीक तक आपको हर रोज 1 टाइम रिएक्शंस लिखनी है, तब जाके ये लर्न होगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोरीन गैस एट लार्ज स्केल। चलो तो अब फर्स्ट इज द डेकन्स प्रोसेस। So by the oxidation of HCl by oxygen gas in presence of CuCl2, it is heated at 723, okay, and we are getting the chlorine gas. Second, the electrolysis of the NaCl, concentrated NaCl solution is known as brine, और उसका electrolysis करेंगे तो chlorine is obtained at anode, okay, चलो, and it is also obtained by the byproduct of the many chemical reactions. Simple. चलो अब हम आए प्रिपरेशंस पे। ओके आगे हमने जो भी किया वो हमने अभी मैंने पहले समझा दिया, ओके उसके बाद रिवाइज करवा दिया फिर से। चलो अब बारी आती है प्रॉपर्टीज की। सो इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट स्मेल एंड द सफोकेटिंग ऑर्डर, मतलब ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है इसलिए। इट इज अबाउट 2 to 5 times heavier than air. It can be liquefied easily into the greenish yellow liquid which boils 239 Kelvin and it is soluble in water. तो क्लोरीन वाटर भी मिलता है, याद होगा। एकदम सिंपल केमिकल इक्वेशंस दी है, देख लो। एल्यूमिनियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, FeCl3, PCl3, S2Cl2, ओके, सल्फर डाइक्लोराइड इसका नाम है। मतलब सिंपल रिएक्शंस। इट हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, सो इट रिएक्ट्स विद द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म द HCl। देखो यहाँ पे रिएक्शन दी है, H2S, देन वी आर गेटिंग HCl, C10H16, ओके, तब आपको मिलेगा कार्बन और HCl। नेक्स्ट, विथ एक्सेस अमोनिया, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट। With excess ammonia, chlorine gives nitrogen and ammonium chloride when we take ammonia in more proportion. When ammonia is reacted with chlorine which is in excess form, अगर हमने अमोनिया ज़्यादा लिया then we are getting nitrogen gas. If we take chlorine gas in more proportion then we are getting NCl3. Okay, then we are getting NCl3. So remember this. Okay, so again excess ammonia, then we are getting nitrogen gas, and chlorine, then NCl3. With cold and dilute alkalis, chlorine produces a mixture of chlorine and hypochlorite. But with hot and concentrated alkalis, चलो ये most important reaction, okay, तो उस टाइम पे आपको NaOH and chlorine gas, okay, तो उस टाइम पे आपको मिलेगा NaCl and NaOCl, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। Similarly, when NaOH reacts with chlorine gas and if NaOH is hot and concentrated, अगर cold and dilute लिया तो NaOCl मिलेगा और hot and concentrated लिया तो NaClO3 मिलेगा। ओके चलो, and with dry slaked lime it gives the bleaching powder CaOH twice chlorine gas to give CaOCl twice CaCl2, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये जो मिक्सचर है ना, CaOCl twice CaCl2 एंड द थर्ड इज 2H2O, ओके,
So these are the chemical properties of chlorine gas. ओके तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये जो रिएक्शन है ना वो टेक्स्ट बुक में आपके नहीं दी है. ओके लेकिन जनरली एमसीक्यू में और बहुत जगह पूछते हैं ये, और कि इफ ammonia is reacted with chlorine which is in excess form, then we are getting NCl3. If ammonia is in more proportion, then we are getting nitrogen gas. और ये जो दोनों रिएक्शंस है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट. कौन से दोनों? NaOH Cl2 देन NaCl एंड NaOCl. NaOCl का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये याद रखना. अगेन इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट. ओके और ये जो NaClO3 जो मिल रहा है यहाँ पे, इसका नाम है सोडियम क्लोरेट. बाकी की दोनों प्रोडक्ट्स कांस्टेंट, NaCl एंड H2O, सोडियम क्लोरेट. ओके सोडियम क्लोरेट है ये. ओके तो कोल्ड एंड डाइल्यूट तो उसमें ये दोनों प्रोडक्ट्स याद रखो, और एन हॉट एंड कंसंट्रेटेड तो उसमें ये दोनों प्रोडक्ट्स याद रखो, NaCl एंड NaClO3. नाउ नेक्स्ट इज विथ ड्राई स्लैक्ड लाइम, स्लैकेड और स्लैक्ड जो भी बोलो. तो यहाँ पे आपको 3 मिक्सचर मिलेगा, CaOl ट्वाइस, CaOCl ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सेम कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O. इन तीनों का मिक्सचर को हम बोलेंगे bleaching powder. So sometimes you may be asked what is the composition of bleaching powder. So it's a CaOCl twice, CaCl2. okay उसमें ये थोड़ा CaOH twice भी होता है and finally H2O. okay देख लो नेक्स्ट पेज पे दिया है. So remember this composition, it's a CaOCl twice, CaCl2, CaOH twice and 2H2O. So this is the composition of bleaching powder. Okay, next, chlorine reacts with hydrocarbons and gives the substitution products like methane, then chloromethane, ethane, then dichloroethane. ओके तो ये देखो यूवी क्यों पता है? क्योंकि जनरली यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन जनरली होती है. कौन सी? फ्री रेडिकल रिएक्शन यहाँ पे होगी. सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? CH4 it is reacted with chlorine. In presence of sunlight, chlorine dot is obtained. और इसमें से क्या होगा? CH3 dot and H dot is obtained and then cross multiplication. CH3 dot एक Cl के साथ, फिर H दूसरे Cl के साथ. Then finally we are getting CH3Cl and HCl. So generally in presence of sunlight such reaction takes place. एंड इथिन अगर हमने लिया है C2H4, तो चलो ये तो पता होगा सबको, इथिन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये 10 चैप्टर में ये रिएक्शन आ चुकी है. सिंपली वन बॉन्ड इज ब्रोकन, one Cl is added here, another Cl is added here. Chlorine water on standing the loses its yellow color due to the formation of HCl and HOCl. HCl means hydrochloric acid and HOCl means hypochlorous acid. लिखा है देख लो. तो ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन. क्लोरीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन वाटर जो होता है ना, Cl2 and H2O, तो इसमें से कौन से दो आयंस मिलेंगे आपको? H प्लस एंड OH माइनस. और यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? Cl-Cl था ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे था Cl-Cl. ओके तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा
तब क्या होगा, जनरली यहां पे होना चाहिए कौन सा बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड का, दो टाइप से ब्रेक होता था याद हो तो, क्लेवेज ऑफ द बॉन्ड। तो उसमें एक था होमोजीनियस, दूसरा था हेट्रोजीनियस। तो यहां पे एक्चुअली होना क्या चाहिए, सी एल सेम है, तो यहां पे होना चाहिए होमोजीनियस, बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हियर both of the pair मतलब both of the electrons will be shifted towards at one side, then we are getting Cl minus and remaining plus. So ये जो Cl plus है ना वो अटैच होगा OH माइनस के साथ, जिससे क्या होगा ClOH, और इसका नाम है HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, और दूसरा जो H प्लस बचा वो Cl माइनस के साथ अटैच, जिससे आपको मिलेगा HCl। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन याद रखो, अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं, देख लो ध्यान से। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, रेडॉक्स में आता था ऐसा 11th स्टैंडर्ड में। अगेन HCl और HOCl दोनों हमने लिए हैं, तो क्लोरीन गैस उसमें दो Cl एटम्स है, दोनों के बीच का जो बॉन्ड हो वो ब्रेक होगा, जिससे वो पैर एक ही साइड पे शिफ्ट होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द आयंस ऑफ वाटर। ओके, जिससे क्या होगा Cl माइनस एंड Cl प्लस, तो ये जो माइनस है वो अटैच होगा H प्लस के साथ, और जो प्लस है वो अटैच होगा OH माइनस के साथ, टू गिव द HOCl एंड अनदर इज HCl। ओके, चलो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मिलता है ना थोड़ा बहुत, तो उसमें नेसेंट ऑक्सीजन नेसेंट मतलब वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम, और वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ब्लीचिंग के लिए भी वो काम आता है। ओके, जिससे क्लोरीन गैस इसमें यूज होता है। चलो, क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस फेरस इनटू फेरिक, मतलब Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में वो कन्वर्ट कर देता है। अगेन Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस। ओके, चलो कंटिन्यू। सिमिलरली Na2SO3, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, और वो कन्वर्ट हो रहा है +6 में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर क्लोरीन का रिडक्शन होगा, मतलब इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। सेम अगेन सल्फर +4 सामने प्लस सल्फर +6, अगेन क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस SO2 into H2SO4। सिमिलरली I2 इज कन्वर्टेड इनटू HiO3, तो यहां भी देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर I2 मॉलिक्यूल देन 0, और यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। कौन सा होगा, 2 3 -6 और 1 -5 हो सामने जाएगा तो +5, गुड, +5 होगा। ओके, तो वो क्लोरीन गैस है। अगेन चलो पूरा लिस्ट बनाते हैं। तो क्लोरीन गैस Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज करते हैं। NO2SO3 उसमें SO3 2 माइनस विच इज कन्वर्टेड इनटू SO4 2 माइनस, SO2 is converted into H2SO4, and final I2 is converted into HiO3। ओके, तो चलो ये टोटल 4 रिएक्शंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देख लो ये वाली रिएक्शन। ओके, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है तो वो जनरली जो भी कलर्ड सब्सटेंस होता है उसको कलरलेस बना देता है, मीन्स इट्स अ ब्लीचिंग कैरेक्टरिस्टिक। इजी। अगेन चलो इस पेज में क्या क्या लर्न करने को आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। ओके, देन द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। और फिर ये 4 रिएक्शंस आई, FeSO4, Fe2SO4 थ्राइस, Na2SO3, Na2SO4, SO2, H2SO4, I2, HiO3। ओके, फिर ब्लीचिंग एजेंट का फंडामेंटल आया, एंड द फाइनल इज द यूजेस ऑफ द क्लोरीन गैस। सो फर्स्ट इज वुड पल्प। चलो सबने नाम तो सुना ही होगा,
तो वुड पल्प मतलब इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन। तो उसमें जो वुड पल्प होता है उसका कलर तो बहुत डार्क होगा, तो वो ब्लीच करने के लिए क्लोरीन गैस यूज होता है। कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम ये यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CCl4, CH3, DDT, refrigerants, etc. In sterilizing the drinking water उसमें क्लोरीन गैस यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ द पॉइजनियस गैसेस लाइक फॉस्चीन। तो जनरली जब कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम याद होगा सबको, कौन सा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम जब एयर में लॉन्ग टाइम रखते हैं ना तो फिर उसमें से फॉस्चीन गैस बन जाता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके। ओके, C+O Cl2 इसका स्ट्रक्चर है। सेकेंड इज टीयर गैस। टीयर गैस में यूज होता है, उसका भी फॉर्मूला याद रखो, CCl3NO2। ओके, इट्स CCl3NO2। एंड द मस्टार्ड गैस, फॉर्मूला एकदम इजी। मेन क्या याद रखना है पता है? सल्फर। ये सल्फर याद रखना है। और दोनों साइड, सल्फर की दोनों साइड देखो सेम हुआ क्या? CH2CH2Cl, CH2CH2Cl। सल्फर की दोनों साइड CH2CH2Cl। इसका नाम है मस्टार्ड गैस। एंड दिस गैस was used, this gas was used by Hitler in World War। ओके, उसने क्या किया था कि सब सोल्जर्स के ऊपर ये गैस उन्होंने छोड़ा था, मतलब एनिमी सोल्जर्स के ऊपर, जिससे वो उनका पहले तो वो कर क्या देता है पता है? लंग्स को वो तोड़ देता है पूरा का पूरा। ओके, लंग्स में क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर हो जाता है लंग में। ओके, जिससे फिर वो सांस ही नहीं ले पाएगा कोई भी। ये मस्टार्ड गैस है। एस की दोनों साइड CH2CH2Cl। इजीली अब आपको लिखना स्टार्ट, कोई इसको लर्न मगअप करेगा, मगअप करने की जरूरत ही नहीं है। अगेन, एस की दोनों साइड CH2CH2Cl। अगेन, एस के दोनों साइड CH2CH2Cl। इजी। ओके, तो चलो, और टीयर गैस, चलो वो तो पता ही है कब यूज होगा। फॉस्फीन याद रखो, ये भी पॉइजनियस गैस है। तो ये सब बनाने के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम केमिकल वेपन यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर में। ओके, केमिकल वेपन समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये था। तो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे मिलेंगे। ओके, वैसे तो देखे तो देखो यूजेस इजी है, थ्योरी है टिपिकल। उसका रीज़न यही है कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपको याद रखनी है। पहले से देखे तो प्रिपरेशन 1, 2 एंड 3, फिर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, फिर ये रिएक्शन तो इजी है, ये वाली भी इजी है। ओके, ये अभी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है तो फिर वैसे चलेगा, जी नीट के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, देन ये खास याद रखो, कोल्ड एंड डाल्यूट है तो NaCl एंड NaOCl, हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH है तो फिर पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म चेंज हो जाती है, NaCl एंड NaClO3। और ये वाला रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, उसके बाद मीथेन और इथीन की रिएक्शन, फिर FeSO4 2Fe2SO4 थ्राइस, Na2SO3 Na2SO4 SO2H2SO4 I2 and HiO3, क्लोरीन गैस, देन HCl एंड O। कलर्ड सब्सटेंस, तो उसमें कलरलेस सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होगा। फिर तो यूजेस आए, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग कॉटन, टेक्सटाइल्स, गोल्ड एंड सिल्वर के एक्सट्रैक्शन, डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक गिवन, रेफ्रिजरेंट्स पता है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसमें हेलोजन यूज होता है, ये कौन सा, ये क्लोरीन अपना। फिर स्टरलाइजिंग द ड्रिंकिंग वाटर,
मतलब जम फ्री बनाने के लिए। उसके बाद तो पॉइजनियस गैस इज फॉस्चिन, टीयर गैस एंड द मस्टार्ड गैस। ओके, तो चलो इसके साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।